Good morning, all of you. I welcome all of you to the lecture Python Programming. Good morning, sir. We are discussing about conditions and loop. In previous lecture, we saw while statement, for loop. There are these two main conditional statement. In Python, while loop we can execute, as well as there we can give the conditions. Whenever we want to break, we can put there break. Otherwise, in while loop, just how much time our statement, our expression is true, that much time it will be continue, it will be execute, there will not be break. So the break we can give there manually. We can add the break in a program. As well as continue, we can use continue. Suppose we want to continue the program from particular location, as here if equal to I is given, so from 3 it will be continue up to the 6 if we print the I. So for loop is also there in a Python as other programming language, but it is somewhat different than the while loop. Example is given here, and in a for loop also we can add the break. Suppose we want until only the Rajasri name, from Preeti to Rajasri, only these three name will be printed, this will be leave if we apply the break. Similarly, we can also continue the statement from Rajasri, so it will be started from here and it will be end here. If we print this, only these two name will be printed. Nested loop, we can also use a nested loop. A nested loop is a loop inside a loop. You see here there are two variables, student and subject. Student, these four students are there, and the subject. For x, what we are storing in x, we are storing in x student. There are four student will be there. And for y, in subject, we are storing the subject in I. So after printing x and y, Riti and all these names should be printed. Let us check the output of this function, output of this program. Yeah, you see here we have name, student, and there are some names we have stored on this variable, and another variable we have created, subject. So subject, okay. Now these variables we are providing to the subject names, and student also we have provided. Now we are going to print, then what will be printed, you see, Riddhi, Python, Riddhi, Java, Riddhi, CPP, these three are printed. After that
Siddhi. Python means first this loop is going to execute. This loop is going to execute first name it taking from the list of the subject. Here first name is taken and provided value of it first. All these three will be executed on this first value. After that, second value of the student variable Siddhi, and all these three times it will be execute at this location. After that third, and after that fourth value is taken, so that you can see here Riddhi Python, Riddhi Java, Riddhi CPP, Siddhi Python, Siddhi Java, Siddhi CPP, Rajashree Python, Rajashree Java, Rajashree CPP, and Puja Python. All these are the subject of this student. Is it understood? Yes, sir. Yes, sir. Again, suppose we want here the marks of the test marks in Python. There are suppose in Python there are suppose two tests, test 1 and test 2. Then we can take again another for loop in this for. Now we can add marks in test, okay, and suppose we are adding here another variable marks. Now the values we have to give here to the test equal to, we can give test test 1 19 and comma test 2 20. Will it execute? Yes, just check it will work or not. What happened? Print indentation. So we have to give here proper indentations. Now see, the test 1 and test 2 marks is added here of Riddhi Python test 1 19, Riddhi Python test 2 20, Riddhi Java test 1 19, Riddhi Java test 2 20. Like this we have added here some of the marks. Okay, we can add also numerical values here. So hope you understood this one. Yes, sir. In this for loop, this loop is going to execute first. Once this list first value of this name is execute, then all these will be executed inside the first value. Then second value of this for first for loop will become, but inside of this second for loop there are again two values.
So the first value is execute, and the value of for loop first will be execute, then first value of a second for loop, then the second value of a third for loop will be execute. Likewise it is going to be execute. So you understood this one. This is one of the example of nested loop. In this, what happen, the nested loop is a loop inside a loop. The inner loop will be executed one time for each iteration of the outer loop. जब तक outer loop जो है complete execute नहीं होती, तब तक इसका एक ही loop चलता है inner loop का. So next one is the iterating with the atom and index. As we have also seen this one iteration, the best of both words come from using the enumerate built-in function. There is enumerate built-in function. For example, this is enumerate is the word which is in the function which is in the numpy array. So let us see, this is variable name list equal to Pooja, Riddhi, Siddhi, Riti, Rajashree. For loop we have taken here A, B in. Now we are giving here the enumerate. So print. In this we are printing the index value. Then with that we are giving the name of the subject, computer science. For A plus 1, this A value will be increased, where we are giving the B value, and B are the name of these. Means Pooja, Riddhi, Siddhi, all these name will become one by one, and the computer science subject should be there. So let us see the output of this. Yes, we have one variable. In this we have added some name, Riddhi, Siddhi, Rajashree, Pooja. Okay. Now for loop we have taken, and there one variable name we are giving A class in enumerate student. Now we are enumerating student to the class, and class value we are giving to the I. So I plus 1. Let's check the output. Now Riddhi is in MSc, Siddhi MSc, Rajashree MSc. This message is going to be printed here. Also we can MSc. You can print like this also. In a single for loop, you see here in previous example we have taken a inner and outer for loop, means nested loop, but there is only the single for loop, and in this we are using the function enumerate. Enumerate will be iterate the function, but there required conditions how much time there we want to iterate. Until the complete list we are iterating that, and so there is message we are giving to these names. This %d for index value, there are 1 2 3 4 index is taken. Because of this %d we have this 1 2 3 4.
and string values are there, because you see here the Siddhi, Riddhi, Rajasri, Puja, these names are the string. Therefore we have taken format specifier %d for string. Then message, what message we want, that message we have added here. And now we have connected this to the this I and this class, which are in our for loop. For printing, we are printing these two values. Is it understood? Yes, sir. Okay. Yes, sir. So next is use with iterator types. Using for loop with iterator identical to use them with a sequence. इटरेटर जो है वो सीक्वेंस के जैसा अपन यूज करते हैं. द ओनली डिफरेंस इज दैट फॉर द स्टेटमेंट मस्ट डू अ लिटिल बिट ऑफ एक्स्ट्रा वर्क ऑन योर बिहाफ. This iterator work a little bit extra than a sequence. An iterator does not repeat a set of items to loop over. This iterator will not represent a set of items over the loop. After loop is over, it will not iterate. Iterate means, suppose we have 10. Now we want the part of this 10 number 5 part we want of this 10. Suppose these are the 10 rupees and we want to distribute these 10 rupees in 5 peoples. Then how much each will get? How much rupees each will get? 2. We have 10 rupees and we want to distribute these 10 rupees in 5 peoples. Then 2 rupees. 3. 2, sir. 2. 2. Okay. So 2 rupees will be there. How you have calculated that? There will be 5 iterations. 5 peoples are there, so 5 iteration we want to make in this. And to make these 5 iterations, what formula we can do? We can use 10 by 5. 10 by 5, it will equal to 3. It will equal to 2. Okay. So 2 rupees will be get to each of the person, if like this. So similarly we can make the iterations by using the iter operator. Just see, instead of iterator object have a next method. We can also use their next method in iterator object, which is called to get subsequent item. It will get all the items. When the set of item has been exhausted, the iterator raises the stop iterator. Exceptions to single that it has finished. Calling next and catching the stop list iterator is built in the for statement. This is the method which is in the for statement for next item and stop the iteration. There is also inbuilt statement into the for loop which can use for the iteration. Also the use of this one is not much in the Python. This next
next method is not used much more in the Python. There are various options for that. Now range built-in function we mentioned about during the introduction of a Python for loop, that is the iterative loops mechanism. Range is the iterative loop mechanism. We have used, I think we have used this in a previous some example for taking the ones. Range means up to 10. Suppose you want up to 10 number, then range we can take 10. So we will get 1 2 3 4 5 up to the 10. Python also provide tools that will let use the for statement in the traditional pseudo conditions setting, that is when counting from one number to another and quieting once the final number has been reached or some condition is no longer satisfied. So the range we can take and directly, suppose we want a range up to the 100, last number just we take, until that it will be iterate all the numbers. अगर आपको सपोज 100 नंबर चाहिए तो लास्ट का फ्रॉम 1 to 100, 1 से लेके 100 तक के नंबर अगर आपको चाहिए तो आप शॉर्टकट इसको रेंज ले सकते हैं. यू विल गेट फ्रॉम starting to the last number which you have given here. The Python present two different way to use the range. इसके दो तरीके होते हैं यूज करने के. The full syntax require that two or all three integer argument are present. जैसे कि आप देखिए यहाँ पे इस तरह से आप यूज कर सकते हैं रेंज 10. लेकिन यहाँ पे देखिए there is the syntax which is range, start, end and step. I think we have taken this example in previous some practical. If not, just keep in mind range requires starting value and that is separated by comma, end value that is separated by comma, and the step we can give the steps. Suppose we want to print, we want to execute this code and suppose we are giving the values to that. Here is the range function. Okay, in this range we want the values from start 10 से जो है वैल्यूज अपने स्टार्ट होनी चाहिए और कॉमा वो जो है 20 तक एंड होना चाहिए. द वैल्यू शुड बी एंड एट 20 और इसमें जो स्पेस है तो स्पेस जो है वो चाहिए आपको 2 का. तो इस तरह से आप रेंज दे सकते हैं. a इक्वल टू रेंज ये आपने दे दिया है तो इसका जो आउटपुट है वो क्या आएगा. लूप जो है अपनी इटरेशन जो है वो 10 से स्टार्ट होगा. सो पहली वैल्यू क्या है 2 का स्पेस आएगा. 10 के बाद 2 का स्पेस दिया तो कितना आता है 12. ये यहाँ पे स्टेप दी है 2 की, इसीलिए यहाँ पे दूसरी वैल्यू जो प्रिंट होगी 12 के बाद 2 से स्टेप 2 की स्टेप दी है, इसीलिए 12 के बाद 2 से स्पेस देने के बाद क्या आता है 14. इसके बाद क्या आएगा यस देखिए रेंज को सिंटैक्स जो है अपन स्टार्टिंग की वैल्यू देते हैं, एंड की वैल्यू देते हैं. स्टार्ट है अपना 10 और एंड जो है वो है 20. ठीक है, इसके बीच में के वैल्यू जो है पूरे के पूरे प्रिंट होने चाहिए. लेकिन आपने यहाँ पे क्या किया स्टेप दे दी. तो स्टेप देने से क्या होता है 2 से ये वैल्यू जो है वो जंप होती है, सिर्फ 2 का स्पेस उसमें आ जाता है. अगर आप यहाँ पे अगर 3 देते हैं, ये यहाँ पे 1 ही दिया है, अगर 1 ही दिया तो पूरे वैल्यूज जो है ऑल द वैल्यूज विल बी प्रिंटेड. इफ यू विल प्रोवाइड ओनली 2 देयर इंस्टेड ऑफ 1 देन द वैल्यू विल बी iterate by space of the 2.
अगर आप 3 देते हैं तो 3 से ये जो है वो जंप करेगा। तो अभी अपन ने यहाँ पे 2 दिया है, तो क्या प्रिंट होगा? 10, 12, 14, इसके बाद क्या बोलो? 16। 16, राइट। इसके बाद 18। तो इसके बीच में जो वैल्यूज़ है वो है 12, 14, 16 और 18, 10 से लेके 20 तक। तो देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। सो रेंज जो है ये बिल्ट इन फंक्शन है। रेंज विल देन रिटर्न अ लिस्ट वेयर फॉर एनी के मतलब स्टार्ट is greater than or equal to less than or equal to k, and k is less than end, and k iterates from start to the end, increment of step. Suppose here step cannot be 0 or an error condition will be occur. तो देखिए यहाँ पे जो स्टेप्स है ये अगर 0 है मतलब कुछ भी नहीं है दिए वाला, देन इट विल टेक फ्रॉम द 0। अगर आपने स्टार्टिंग वैल्यू कुछ भी नहीं दी तो 0 से स्टार्ट करता है। अगर आपने एंड की वैल्यू कुछ भी नहीं दी है तो जो कुछ भी एटम्स लिस्ट में लास्ट में होंगे तब तक की वो रेंज लेगा। और स्टेप जो है आप 0 स्टेप नहीं दे सकते। मतलब अगर आपने 2 से 19 तक के वैल्यूज़ आपको प्रिंट करना है और स्टेप दी है 0, तो ये 2 से आगे ही नहीं जाएगा। 2 तो ये लेता नहीं है, इसमें एरर आएगा। तो ये 0 से आपको बड़ी वैल्यूज़ देनी पड़ेगी। एक दे सकते हैं, 1 दे सकते हैं, 2 दे सकते हैं, 3 दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर आपने दिया है तो यहाँ पे देखिए 2 से 19 तक, तो आउटपुट क्या आएगा? 2, 5, 8, 11, 14, 17। तो if step is omitted and only 2 argument is given, तो by default it take 1। by default जो है वो 1 लेता है। तो देखते हैं इसको एग्जीक्यूट करके। तो यहाँ पे लेते हैं रेंज। ठीक है, आपने रेंज लिया है। हाँ बोलो, फर्स्ट वैल्यू क्या डालूँ बताओ? यस राजश्री? 2 डालिए सर। हाँ ठीक है, 2 लिया है। ये हो गया आपकी स्टार्टिंग वैल्यू। उसके बाद देना है कॉमा। कॉमा देने के बाद आपको देनी है स्टॉप। कहाँ पे स्टॉप होना चाहिए? कहाँ तक बोलो? 20 तक वैल्यू लिए है। और आपने अगर स्टेप कुछ भी नहीं दी है स्टेप, तो 2 से लेके 20 तक के जो वैल्यूज़ है वो इसमें आ जाएंगे। देखिए आपको ये प्रिंट करना पड़ेगा तभी ये वैल्यू जो है वो दिख पाएंगी। तो इसीलिए आप यहाँ पे लिखते हैं प्रिंट, और इसको एक वेरिएबल में लेते हैं। तो वेरिएबल लेते हैं अपन रेंज 1 इक्वल टू, ठीक है। तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे रेंज 1 को। तो देखो
ये क्यों नहीं प्रिंट हो रहा? इसको शॉर्टकट में ए लिखते हैं थोड़ी देर के लिए। ए में रेंज है 2 से लेके 20 तक, लेकिन ये वैल्यू जो है वो प्रिंट क्यों नहीं हो रहे? यहाँ पे स्टेप देते हैं 1 की, हाँ बोलो क्यों नहीं प्रिंट हो रहा है? ए का डेटा टाइप देखते हैं क्या है। तो ए का अगर डेटा टाइप आपको देखना है तो टाइप्स लिखेंगे, इसके बाद में ए लिखते हैं। प्रिंट तो इसका क्लास रेंज है, इसका जो डेटा टाइप है वो रेंज है। फिर भी अपन को इसमें के जो वैल्यूज़ है वो नहीं दिख रहे हैं। तो लेट अस टेक अ लुक एट वन एग्जांपल। तो इसमें आप लेंगे फॉर लूप प्रिंट करने के लिए 1 बाय 1, फिर वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाएगी। और फॉर लूप लेके रेंज की वैल्यू जो है वो देते हैं। तो यहाँ पे लेते हैं फॉर ए इन, देते हैं इसको ए, यहाँ पे लेते हैं बी, मोबाइल पे ही होता है क्या? तो प्रिंट करके देखते हैं क्या प्रिंट होता है। अब यहाँ पे लेंगे बी, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? तो देखो जो वैल्यूज़ है 2 से लेके 19 तक, मतलब 20 वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई। ठीक है, इसमें इटरेशन करना है आपको, तो इटरेशन करने के लिए आपको लूप लेनी पड़ेगी। सो आफ्टर टेकिंग लूप वी हैव दिस वैल्यू। एक वेरिएबल लिया है आपने, इसमें रेंज रख दी है 2 से लेके 20 तक और स्टेप दी है 1 की। अगर आप स्टेप निकाल भी लेंगे फिर भी यही वैल्यूज जो स्पेस है 2 और 3 में वो है 1 का, तो बाय डिफ़ॉल्ट वो 1 ही लेता है। 2 3 4 5 इट इज़ टेकन। अगर आप 1 से लेते हैं तो कोई बात नहीं, 1 से भी हो जाएगा, 1 से लेके 19 तक
मतलब जो लास्ट वैल्यू होती है वो प्रिंट नहीं होती है, उसमें 1 से लेके 19 तक वैल्यू जो है वो प्रिंट हो गई। तो ये रेंज इस तरह से आप दे सकते हैं। फिर से देखते हैं दूसरा एग्जांपल। अगर आपने समझो यहाँ पे स्टेप दिया है 2 का, तो क्या प्रिंट होना चाहिए? अभी ये बी, आप बी को प्रिंट कर रहे हैं और बी को क्या दे रहे हैं? ए के वैल्यूज़ दे रहे हैं। तो जब तक ये ट्रू रहेगा, ए में वैल्यूज जब तक रहेंगे तब तक इसको प्रिंट करेगा। ये फॉर का वर्क है, ठीक है। तो इसको एग्जीक्यूट करने के बाद क्या प्रिंट होने वाला है? व्हाट विल बी प्रिंटेड इफ यू एग्जीक्यूट दिस कोड? बोलो राजश्री। स्टेप आएंगे ना अभी 1 3 गैप 2 ऐसा स्टेप 1 3 1 3 1 3 ऐसे ही स्टेप आएंगे ना सर अभी। हाँ 1 3 5 7 9 11, ठीक है। तो आपने सही बता दिया है। फिर से देखते हैं और एक एग्जांपल। समझो आपने इसमें कुछ भी नहीं दिया, तो क्या प्रिंट होगा? देखते हैं। तो एरर आ जाएगा। तो आपने दिया है यहाँ पे सपोज 20 और ये वैल्यू जो है यहाँ दिया है 5 का। अब क्या प्रिंट होगा? बोलो अब क्या होगा? वन 5 10 15 ऐसे होनी चाहिए सर। 1 6 11 16, इसके बीच में 5 का स्पेस आता है। अगर यहाँ पे आपने 2 दिया तो 1 के बाद 3 आता है, 2 नहीं आता। समझ में आया? हाँ सर। हाँ। तो अगर यहाँ पे आपने दिया है 9 तो क्या आएगा? बोलो आउटपुट क्या होगा इसका? One 10 19. Hope you understood this. So we are moving to the next. So in this way we can use. अगर आपको इसमें कुछ मैसेज लेना है तो आप मैसेज भी ले सकते। तो मैसेज लेने के लिए आपको क्या सिंगल या डबल कोट में भी ले सकते हैं आप। इसीलिए यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं आप, जैसे कि वैल्यूज। वैल्यूज 1 10 20, ओके। Our for loop now count from 2 to 19। इस लिस्ट में 2 से 19 तक के इंक्रीमेंटिंग बाय स्टेप 3। If you are familiar with C, then you will notice the direct correlation between the arrangement of range and those variables in a C for loop। तो ये C लैंग्वेज में भी होता है, आपने देखा ही होगा, डायरेक्टली कोरिलेट रहता है। तो इसका कोड अपन नहीं देखते हैं सी लैंग्वेज का, जस्ट वी आर लुकिंग द पाइथन कोड्स। सो रेंज एब्रिविएटेड सिंटैक्स। रेंज आल्सो हैज़ 2 एब्रिविएशन सिंटैक्स, एक है एंड और दूसरा है स्टार्ट एंड। तो देखते हैं
जो पहले वाला था वो आपने देखा ही नहीं है, इसीलिए सपोज यहाँ पे आपने अगर सिर्फ एंड की, अगर आपने एक ही वैल्यू दे दी है तो ये एंड की वैल्यू कंसिडर करता है और पूरे जो है एंड तक की वैल्यू प्रिंट करके देता है। तो देखते हैं, स्टार्टिंग की वैल्यू नहीं दी है आपने, सिर्फ एंड ही दिया है, तो एंड तक की वैल्यू जो है वो प्रिंट हो जाती है। तो ये भी अनदर सिंटैक्स है। एक तो रेंज एंड स्टार्ट और एंड के साथ ले सकते हैं आप, या तो फिर सिर्फ एंड के साथ ही ले सकते हैं अगर स्टार्टिंग आपके पास नहीं है तो। द स्टार्ट डिफ़ॉल्ट टू 0 एंड स्टेप डिफ़ॉल्ट टू 1। स्टार्ट जो है डिफ़ॉल्ट 0 होता है और उसका जो स्टेप्स होता है बाय डिफ़ॉल्ट 1 होता है। अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा तो इट विल टेक अ 1। एंड रेंज रिटर्न अ लिस्ट ऑफ नंबर्स फ्रॉम 0 अप टू द आर्गुमेंट एंड। जब तक आर्गुमेंट एंड नहीं होती है तब तक ये रेंज होता है। और एक्स रेंज इज सिमिलर टू द रेंज। इसमें एक एक्स रेंज नाम की भी मेथड है, एक्स रेंज नाम का भी एक फंक्शन है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। इट इज़ सिमिलर टू द रेंज एक्सेप्ट दैट इफ़ यू हैव अ रियली लार्ज रेंज लिस्ट। जब बड़ी लिस्ट होती है तब इसको एक्स रेंज को यूज़ करते हैं। may come in handlers because it does not have to take the complete copy of the list in a memory. This built-in was made for exhaustive use in a for loop. तो एक्स रेंज इसमें है, इतना ही आपको याद रखना है। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, जब लिस्ट बहुत ही बड़ी है तब इसका यूज़ होता है। अदरवाइज यू कैन यूज़ ओनली द रेंज एंड डू योर वर्क्स। आपके जो कुछ भी वर्क्स है यू कैन परफॉर्म बाय यूजिंग दिस रेंज फंक्शन, रेंज मेथड। सो नेक्स्ट इज द सीक्वेंस रिलेटेड बिल्ट इन फंक्शंस। सीक्वेंस के रिलेटेड कौन से बिल्ट इन फंक्शन है, तो इसमें है सॉर्टेड, रिवर्स, इनुमरेट, जिप। ये जो है सीक्वेंस रिलेटेड फंक्शंस है। बिलो आर सम ऑफ द एग्जांपल यूजिंग दिस लूप ओरिएंटेड सीक्वेंस रिलेटेड फंक्शन। तो सीक्वेंस रिलेटेड फंक्शन कौन से है, ये 4 है। कौन से है? फर्स्ट कौन सा है रिद्धि? राजश्री? What sir? सीक्वेंस रिलेटेड इनबिल्ड फंक्शन है पाइथन में, वो कौन से Sorted. हाँ, पहला है सॉर्टेड और Reverse. रिवर्स, इनुमरेट, जिप। तो ये आपको याद रखना है, जब आप प्रोनाउंस करेंगे तभी ये याद कर पाएंगे। Yes. रिद्धि? Yes sir. कौन से है Yes sir. सीक्वेंस रिलेटेड? हाँ, Sorted यस। sorted है, reversed है, enumerate है और zip है. ओके। पूजा? Yes sir. कौन से फंक्शंस है? सीक्वेंस रिलेटेड इनबिल्ड फंक्शंस कौन से है? सर sorted है, reversed है, zip है और enumerate है. ठीक है। प्रीति? प्रीति आपने म्यूट ही रखा है शायद, अनम्यूट करो। बोलो जल्दी। कौन रह गया? सर मैं हाँ बोलो। sorted है, reversed है, enumerate है and zip. क्या है ये? Sequence related built-in function.
राइट। तो क्वेश्चन आ सकता है सीक्वेंस रिलेटेड इनबिल्ट फंक्शंस कौन से हैं, व्हाट आर द सीक्वेंस रिलेटेड इनबिल्ट फंक्शंस। तो आपको ये सॉर्टेड, रिवर्स, इन्यूमरेट, जिप लिखना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी हो सकता है। सीक्वेंस रिलेटेड इनबिल्ट फंक्शंस डैश डैश डैश, प्रिंट, कॉपी और दूसरे जो कुछ भी है, रेंज। तो इसमें रेंज नहीं है सीक्वेंस रिलेटेड। सो द रीज़न व्हाई they are sequence related is that half of them sorted and zip। sorted और zip ये sequence related क्यों है? it's written a real sequence। ये लिस्ट जो है, लिस्ट को प्रिंट करते हैं, लिस्ट लेते हैं, इसको रिटर्न लिस्ट करनी पड़ती है। while the other two, reverse and enumerate, return the iterators sequence like। रिवर्स और इन्यूमरेटर जो है वो इटरेशन करते हैं, ऐसे इसमें पार्ट्स बनाते हैं। और सॉर्टेड और जिप क्या करते हैं, इसको पूरी जो लिस्ट है, ये जो लिस्ट है, ये लिस्ट के लिस्ट वेरिएबल को देते हैं। इसीलिए ये जो है सीक्वेंस रिलेटेड इनबिल्ट फंक्शन है। तो देखते हैं प्रैक्टिकली। सपोज आपके पास स्टूडेंट के लिस्ट है और उनका बर्थ, एक एग्जांपल लेते हैं और प्रिंट करते हैं। फॉर लूप आपको लेनी पड़ेगी, तो नया कोड लेते हैं। अभी कौन कौन प्रेजेंट है मुझे अटेंडेंस बता दीजिए। मैं यहाँ पे आपके एक वेरिएबल में नाम लिखता हूँ। हाँ चलो बोलो, कौन है? प्रीति है। सॉरी क्या? तो वहाँ पे लाइट का इश्यू है, इसलिए वो लीव हो गई है। लीव हो गई है क्लास। 3-4 दिन में इतनी बना ली, ये ऑलरेडी क्या बड़े बनाए थे क्या PSD फाइल्स? ऑलरेडी वेरिएबल है ऐसा बोल रहे क्या आप? नहीं सर, आपने पूछा ना कौन कौन है ग्रुप में, तो मैं बोल रही हूँ लीव हो गई है, वहाँ पे लाइट का इश्यू आया है। अच्छा ठीक है, मुझे बताइए। हाँ बाकी दूसरे कौन है? कॉमा देके कोटेशन में सिद्धि, उसके बाद फिर से कोटेशन में बोलो। उसके बाद फिर से कोटेशन में, इसके बाद हो गए क्या? पूजा 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 है, पूजा है, ठीक है, हो गए। तो इसको करते हैं एग्जीक्यूट। क्या आता है? कुछ भी नहीं आया, एरर कुछ नहीं है। ओके, अच्छी बात है। दूसरा एक वेरिएबल लेते हैं अपन, क्या लूँ? बोलो। रोल नंबर, रोल नंबर इक्वल टू, हाँ चलो पता है आपको, प्रीति का पता है। बोलो।
Excuse me, sir. यस, बोलो। मैं सुन रहा हूँ, बताइए। सर एक्चुअली रोल नंबर 2 मेरा है, आपका नाम क्या है? पूजा। पूजा, लास्ट में रोल नंबर 2, ठीक है। और प्रीति का क्या है? 4। किसी का 3 3 है प्रीति सर। का 3 है। यस सर। हाँ ठीक है। और सिद्धि का हाँ। 6 है, रुबी का 5 है, राजश्री का 4 रह है। गया ना? हाँ, 4 4। देख पा रहे हो ना तुम स्क्रीन पर विजुअली? हमारे लिए बता रहा हूँ, ऊपर भी तो पता है। तो ये 2 लिस्ट बन गए अपने। अब इसमें फॉर लूप आपको लेना है और एक वेरिएबल लेना है। कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे इन्होंने लिया था सॉर्टेड प्रिंट एल्बम। तो एक ही वेरिएबल लिया है यहाँ पे फॉर लूप, वो लिया है स्टूडेंट इन सॉर्टेड। तो सॉर्टेड बराबर है यस स्मॉल होगा, इसका जो यस अपन ने कैपिटल लिखा है स्मॉल, ये बहुत अच्छे से लिखना है आपको। हाँ हेलो सर। सॉर्टेड क्या करना है? सॉर्टेड आपको ओके यार, स्टूडेंट, लिखते रहे बराबर। इसको सॉर्टेड करना है। और इसको लिखते हैं अपन वेरिएबल नेम स्टूडेंट1। स्टूडेंट1 में इसको सॉर्टेड करके लिखते हैं, ठीक है। और उसके बाद में प्रिंट करते हैं। तो इसको डेलिमिनेशन प्रिंट क्या करना है? इसको ये स्टूडेंट1 को अपन क्या करते हैं? प्रिंट करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या प्रॉब्लम हो गया। यहाँ पे क्या चाहिए? ये फॉर लूप है इसीलिए। तो देखो पूजा फर्स्ट आ गई है, प्रीति, उसके बाद राजश्री, सिद्धि, रिद्धि और सिद्धि। तो ये सॉर्टेड हो गए, अल्फ़ाबेटिकली सॉर्टेड हो गए क्या? नहीं सर, रोल नंबर की वजह से हुआ है। रोल नंबर तो आपने लिया ही नहीं ना, ये वेरिएबल अभी तो लिया ही नहीं। इसको तो अपन कट भी किए तो कुछ प्रॉब्लम नहीं। देखिए ये सर नेम बाय सॉर्ट हुआ है। कैसे सॉर्ट हो गए? नेम बाय न्यूमेरिकली, मतलब अल्फाबेटिकली। अल्फ़ाबेटिकली, यस सर। हाँ अल्फ़ाबेटिकली सॉर्ट हुए, देखिए, ठीक है। तो अगर आपको ऐसे सॉर्ट करना है तो अल्फ़ाबेटिकली आप इसको सॉर्ट कर सकते हैं। अगर समझो आपको इसको रिवर्स करना है तो आप रिवर्स भी कर सकते हैं। सो फॉर एल्बम इज रिवर्स, वी कैन रिवर्स them by using next code। इसको यहाँ पे कॉपी करते हैं, इसको करते हैं डिलीट, और इंस्टेड ऑफ दिस रिवर्स्ड है, और ये जो लिस्ट है वो रिवर्स प्रिंट हो जाएगी। शायद देखते हैं क्या हुआ। तो हो गया रिवर्स। इसके बाद में कौन सा है? इनबिल्ट फंक्शन जिप। जिप तो लास्ट वाला है। यहाँ पे क्या है? और जिप के बाद फंक्शन
इन्यूमरेट। हाँ, तो वो अभी यूज़ किया था आपने यहाँ पे इन्यूमरेट। तो देखते हैं इन्यूमरेट करके। तो इन्यूमरेट के साथ क्या आ गया, इंडेक्स वैल्यू आ गई, और जो लिस्ट इसमें क्या है, इसका जो लिस्ट में जो भी है वो सब आता है। जैसे कि ये कोटेशन में आ गए, इसमें कोटेशन में नहीं आया था। ये दो डिफरेंस है इसमें और जिप में। तो इसके बाद में अब लास्ट वाला कौन सा बच गया अपना, जिप फंक्शन। तो जिप के लिए आपको दो वेरिएबल्स लगेंगे, तो इसीलिए अपन क्या करते हैं, रोल नंबर भी लेते हैं और ये दोनों को जिप करते हैं। आपको जिप करना है, न्यू कोड लेते हैं, रोल नंबर और स्टूडेंट के नाम अगर आपको जिप करना है, वी कैन डू दैट बाय यूजिंग फॉर लूप, और इसको प्रिंट भी करेंगे, इसलिए ये दोनों भी ले रहे हैं यहाँ पे। हाँ, तो क्या करूँ अब यहाँ पे इन्यूमरेट की जगह पे जिप, राइट। और एक तो वेरिएबल आपने लिया है और दूसरा भी एक आपको लेना पड़ेगा। तो इस रोल नंबर को अपन लेते हैं यहाँ पे, और इसको क्या करूँ, रोल नंबर 1 लेते हैं। और इस जिप में, जिप आपको क्या क्या देना है, दो वैल्यूज़ पास करने पड़ेंगे। पहला वेरिएबल है स्टूडेंट नेम, और दूसरा वेरिएबल जो है ये दोनों को लिया है और ये दो को जिप कर दिया है। देखिए यहाँ पे ऐसा ही है। और इसके बाद में आपको प्रिंट करना है। तो प्रिंट क्या करना है, अभी यहाँ पे क्या करूँ, क्या लिखूँ, बोलो। रोल नंबर। रोल नंबर 1। हाँ, क्या स्पेलिंग है, रोल एन, इसके बाद में 1 लेना है, क्योंकि ये जो है आपने ये दो वेरिएबल इसको असाइन किए हैं, इन इसको कर दिया है, इसीलिए ये 2 चाहिए। तो देखते हैं जिप होता है क्या। तो ये जिप हो गया है, प्रीति 03, सिद्धि 10, रिद्धि 6, राजेश्री 4 और पूजा 2, बराबर है क्या? यस सर। ओके, यस सर। ठीक है। अभी अपन यहाँ पे शायद स्टॉप करना चाहिए, क्या कंटिन्यू करना है? यहाँ तक आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। यस सर। तो नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं इटरेशन। तो आपने इनबिल्ट फंक्शन देखे हैं अभी, तो होमवर्क क्या रहेगा आपका? होमवर्क क्या करेंगे आप? सिद्धि, यस सर। क्या करते होमवर्क? तो ये बिल्ट इन फंक्शन का करना है। बिल्ट इन फंक्शन का यूज़ करते, यस सर। ठीक है, इसका यूज़ करके या फिर प्रोग्राम करना है, ठीक है। तो आप एक न्यू फाइल, इस कोलैब में आप एक ही फाइल में पूरा आपके जो कुछ भी प्रोग्राम है एक फाइल में रख सकते हो, और वो फाइल जो है ना वो मुझे भी शेयर कर सकते हैं, या ये जो फाइल है अपनी, ये फाइल मैं आप सभी को भी शेयर कर सकता हूँ।
इसमें अगर मैंने आपके नाम ईमेल आईडीज डाल दिए ना तो हो जाएगा। ओके सर। तो इसीलिए आप जो अपनी प्रैक्टिकल का जो है वो इस फाइल में सेव करना है आपको। अगर इसके बारे में अगर आप कुछ थ्योरी लिखना है, समझो इस प्रोग्राम के पहले आपको कुछ लिखना था यहाँ पे, तो आप इसके पहले अगर आपको कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हैं, टेक्स्ट ऐड कर सकते हैं और ये यहाँ पे लिख सकते हैं शिफ इज built-in कंटिन्यूअस। कौन सा है ये? बिल्ट-इन कंटिन्यू है क्या? बिल्ट-इन फंक्शन है ना, बिल्ट-इन तो है लेकिन कौन सा है? तो इस तरह का मैसेज आप इसमें लिख सकते हैं टेस्ट के ऊपर क्लिक करके। ये प्रोग्राम के बारे में अगर आपको कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना है तो अगर यहाँ पे आपको कमेंट करना है तो आप हैश यूज़ कर सकते हैं। ऐसा हैश यूज़ करके अगर इसमें कुछ दीज आर स्टूडेंट्स रोल नंबर, तो ऐसा भी आप इसमें लिख सकते हैं तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। ठीक है। यस सर। So hope you understood. If you have any doubt you can ask, otherwise we are going to stop here. So thank you very much, have a nice day. थैंक यू सर। Thank you, sir.